Okay. So carbon dioxide we had seen till here, right? ये pH हमने देखा था blood का maintained by this buffer solution. Am I right? Yes, sir. Yes. Okay. Now some more reactions or applications of CO2. Photosynthesis. It is the process by which green plants converts atmospheric CO2 into carbohydrates such as glucose. The overall chemical changes can be expressed at CO2 plus H2O in presence of chlorophyll and sunlight gives C6H12O6 glucose and O2 रिलीज करते हैं. ये वेल नोन रिएक्शंस है और आई थिंक ये तुम्हें तो बहुत अच्छे से पता होंगी रिएक्शंस. Synthesis, photosynthesis, is that okay? क्या फोटोसिंथेसिस क्लियर है? क्या मुझे इसमें और डिटेल में बताना है कुछ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then by the process, photosynthesis, by the process, plants make food for themselves as well as for the animals and human beings. Unlike CO, it is not poisonous, but the increase in combustion of fossil fuels and decomposition of the limestone for the cement manufacture in recent years seems to increase CO2 content of the atmosphere. This may lead to increase in greenhouse effect and thus raise the temperature of the atmosphere. वैसे तो टॉक्सिक नहीं है, बट ये हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ाती है CO2 गैस. तो रिसेंट टाइम में ये ऑब्जर्व किया गया है. जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको इंक्रीज करती है और टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का बढ़ाती है. क्या? तो यहाँ से लेके यहाँ तक CO2 का फोटोसिंथेसिस और ग्रीन हाउस इफेक्ट दिया है. After this, carbon dioxide can be obtained as a solid in the form of dry ice by allowing the liquefied CO2 to expand rapidly. Dry ice is used as a refrigerant for ice cream and frozen food. Gaseous CO2 is extensively used to carbonate soft drinks. जो हमारा थम्स अप, कोको कोला ये बनते हैं उसमें CO2 का यूज होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में. Being heavy and non-supporter of combustion, it is used as fire extinguisher. A substantial amount of CO2 is used to manufacture urea. So urea NH2CO NH2 के मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज आता है इसका. Then in CO2 molecule, carbon atom undergoes sp hybridization. Two sp hybridized orbital of carbon atoms flip with two p orbitals of oxygen atoms to make two sigma bonds, while the other two electrons of carbon atoms are involved in p pi bonding with oxygen. This result in its linear shape with bond with both carbon oxygen bond of equal length 115 picometer with no dipole moment. The resonating structure as shown below. तो ये कुछ resonating structure में exist करेगा. First one, second one and sorry first और last ये resonating structure होगा. ये वाला एक hybrid structure बोल सकते हो. क्या इतना क्लियर है? कुछ भी ऐसा नहीं था इसमें जो नया था, सब कुछ हमें पहले से भी पता था. जस्ट हमें पॉइंट वाइज लिखना है अभी से. फोटोसिंथेसिस जितना हाईलाइट किया है पहले वो लिख लो.
जितना मैं बॉक्स में रख रहा हूँ ना, हाईलाइट कर रहा हूँ, उतना कॉपी करते चले जाना। सर ये सब प्रॉपर्टीज में लिखना है क्या? हाँ हाँ, मतलब जस्ट पॉइंट वाइज लिख सकता हूँ, प्रॉपर्टीज तो नहीं बोल सकते ऐसा। जस्ट यू कैन राइट फर्स्ट पॉइंट, नो सेकंड पॉइंट, एरो करके लिख लो। जैसे रेड बॉल ऑक्स इसके यूजेस में काउंट होगा। हो गया कॉपी? नो सर।
हो गया अभी? Yes, sir. Now you can copy this point also. In CO2 molecule, carbon atom undergoes sp hybridization. वैसे तो हमें पता ही है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं है. यहाँ पर मेनली तुम्हें ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो. क्लियर? बॉन्ड लेंथ 150 पिकोमीटर इतना लिख लो, और sp हाइब्रिडाइजेशन, बस इतने 3 पॉइंट लिख लो. स्ट्रक्चर ड्रॉ करके sp हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन, बॉन्ड लेंथ इज दिस. Structure, bond length and hybridization, that's it. हो गया? कृष्णा, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों लिखा है चेट बॉक्स में? क्या जानना है उसमें? कृष्णा, एम आई ऑडिबल? कृष्णा, Yes, sir. नाम क्यों पड़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट का? नाम क्यों पड़ा अब यार? ये तो हमारे ज्यादा काम का ये है कि नाम क्यों पड़ा से बेटर है क्या होता है. ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी जिसका भी नाम है तो क्या इफेक्ट है, दैट्स इट. क्यों पढ़ा मुझे भी नहीं पता, होगी कुछ तो चीज, उसके भी साइंस होगा. चलो, सिलिकॉन ऑक्साइड, ये मैं तुम्हें यहां से नहीं उस हैंडआउट में से बताता हूं.
एक और ऑक्साइड है कार्बन का जो एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा सा ही इंफॉर्मेशन है, इसको भी देख लेते हैं। कार्बन सब ऑक्साइड C3O2, दिस इज कॉल्ड कार्बन सब ऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर तुम देखोगे, ऑल कार्बन आर sp हाइब्रिडाइज्ड एंड लीनियर स्ट्रक्चर होता है इसका, जैसा CO2 होता है। ठीक है, बीच में बस CO2 में यहाँ पे 2 कार्बन और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड को जब स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट से के कांटेक्ट में लेके आओगे तो C3O2 बनेगा। इज दैट ओके? कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड। Am I audible properly? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कॉपी करो जल्दी से कार्बन सब ऑक्साइड। हो गया? Yes, sir. देखो, SiO2 हम थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं, जितना एनसीईआरटी में दे रखा है उससे थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। यश का मैसेज, सर कैन यू प्लीज शेयर इट ऑन ग्रुप। मैं शेयर तो कर दूंगा, बट यश ये जो फाइल है ना, इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ये मेरे पास जो हैंड रिटन है, ये मेनली आईआईटी एडवांस के लिए, तो इसमें डेफिनेटली एनसीईआरटी तो पूरा कवर होता ही है, बट उससे ऑलमोस्ट डबल इंफॉर्मेशन। तो तुम्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, बहुत सारे रिएक्शन थे कि कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है, इसीलिए मैं इसको ग्रुप पे शेयर नहीं करूंगा। देखो, SiO2, सिलिकेट्स, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, almost 95% अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ दिस सिलिका, सिलिकेट, सिलिकॉन के कंपाउंड्स। क्लियर? सो सिलिकॉन का जो कंपाउंड्स होते हैं उससे ऑलमोस्ट 95% अर्थ पे जो पार्टिकल्स हैं उससे बने होते हैं। और जो SiO2 है, दैट इज मेनली नोन एज सिलिका। SiO2 को मेनली सिलिका बोलते हैं। सिलिकेट्स मतलब सिलिकॉन ऑक्साइड के कंपाउंड्स, और सिलिकॉन के कुछ कंपाउंड्स। सिलिका क्या हो गया? SiO2 इज कॉल्ड सिलिका। इज दैट ओके? जैसे एल्यूमिना नहीं होता है Al2O3, सिलिका होता है SiO2। इज दैट ओके? सिलिकॉन कैन नॉट फॉर्म ppi bonds with oxygen due to its larger size, इसलिए ये मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे SiO2 CO2 एग्जिस्ट करता है ना इस फॉर्म में, SiO2 कैन नॉट एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म बिकॉज इट कैन नॉट फॉर्म डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। यहाँ पे ppi सेकंड बॉन्ड फॉर्मेशन इजी नहीं होता है बिकॉज ऑफ लार्जर साइज ऑफ सिलिकॉन। क्लियर? तो सिलिकॉन विल नॉट फॉर्म सच काइंड ऑफ बॉन्डिंग लाइक CO2। तो अब SiO2 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? SiO2 एग्जिस्ट करेगा इस पॉलीमेरिक फॉर्म में, चेन फॉर्म में। यहाँ पे Si फिर ऑक्सीजन, ऐसा कंटिन्यूस स्ट्रक्चर होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हार्डनेस एंड इनर्ट ड्यू टू टेट्राहेड्रल नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। टेट्राहेड्रल ये भी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 4 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। SiO2 is acidic in nature, hence it can react with base, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, Na2SiO3 बनाएगा।
HF के साथ एसिडिक रिएक्शन नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये जो रिएक्शंस हो रही हैं ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। SiO2 plus HF will give SiF4. On further addition of HF, it give H2SiF6. SiO bond is very strong, suggesting some p-pi d-pi bonding. यहाँ पे सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो कभी कभी ये भी लगता है यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी, क्योंकि जो सिलिकॉन के पास d ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो कुछ बैक डोनेशन के थ्रू एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर? सो बैक बॉन्डिंग इज आल्सो फिजिबल based on electronegativity difference. 50 to 70% ionic character is there. सिलिकॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, 50 to 70% आयनिक कैरेक्टर एक्सपेक्टेड है एज पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्या ये सारे पॉइंट्स समझ में आए हैं? ऐसा कुछ जो नहीं समझ में आया हो इसमें? कॉपी करना है तुम्हें सब कुछ? ये स्ट्रक्चर, ये दोनों रिएक्शन NaOH और HF के साथ, ये सब कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसमें सिलिकॉन। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सेकंड पॉइंट में हाई मेल्टिंग पॉइंट के बाद क्या लिखा है? हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हार्डनेस एंड इनर्ट। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हार्डनेस एंड इनर्ट। देखो यहाँ पे लिखा है इट इज इनर्ट इन नेचर, और यहाँ पे फिर दो रिएक्शन दिए हैं। इसका मतलब ये है ये ऑलमोस्ट सारे सब्सटेंस के लिए इनर्ट है एक्सेप्ट दिस टू NaOH and HF। सो NaOH और HF के साथ रिएक्शन होता है, बाकी सबके साथ इनर्ट। हो गया? No, sir. सर वो SiF4 के नीचे HF लिख के क्या लिखा है? H2SiF6। ऑन एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ HF, पहले कुछ HF ऐड किया, फर्दर HF ऐड किया, फिर H2SiF6। H2SiF6। Is that okay? यस मतलब डिपेंड्स कितना कम HF ऐड कर रहे हैं तो पहला रिएक्शन होगा, ज्यादा HF ऐड कर रहे हैं तो सेकंड भी हो जाएगा।
अथर्व, दर्शिता, दिशा, हो गया कॉपी? इसमें एक यूजेस और रह गए हैं, उसके बाद हम सिलिकेट्स पे आएंगे। यूजेस देखो, uses of silicates, quartz is an example of the silica, SiO2 का ही वो सब्सटेंस होता है। और यहाँ पे यदि हम uses देखेंगे, these are the uses. Quartz is extensively used as a piezoelectric material. It has made possible to develop extremely accurate clock, modern radio and television broadcasting and mobile radio communication. Silica gel is used as a drying agent and as a support for chromatographic material and catalysts. An amorphous form of silica, कुछ किस लेकर नेम दे रखा है, it is an amorphous form of silica used in the filtration of plants. सिलिका जेल देखा है तुमने वैसे कहीं? सिलिका जेल जब भी हम कुछ नया खरीदते हैं, यदि हम कुछ ले रहे हैं, वाटर बोतल, लंच बॉक्स या फिर सूटकेस, ब्रीफकेस, उसमें एक छोटा सा पाउच होता है सिलिका जेल का। उसमें फंगस क्रिएट ना हो इसलिए वो सिलिका जेल रखते हैं, जो भी वहां पे मॉइस्चर है उन्हें वो एब्जॉर्ब कर ले, राइट? कॉपी कर लो यूजेस। Uses, first point, quartz is extensively used as piezoelectric material. क्या कोई मुझे बताएगा what is piezoelectric material? क्या होता है? दो अलग अलग वर्ड हैं, piezo and electricity. कहीं पे यूज आया होगा तो शायद मैंने बताया होगा। Anyone has any idea what is piezoelectric? The word piezo means pressure, electric, electricity. जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को प्रेशराइज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाते हैं, वी कॉल इट पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल. So piezoelectric material, substance which can generate electricity on applying pressure. Is that okay? Yes, sir. 2019 या 2020 JEE मेन में आया था. Which of the following is a piezoelectric material? और उसमें one of the option था quartz. You can write if you want piezoelectric. Substance which can generate electricity under the effect of pressure.
substance which can generate electricity under the effect of pressure. The substance which can generate electricity under pressure, right? Under the effect of pressure. हो गया, चले हम आगे. Yes, sir. देखो सिलिकेट्स. सिलिकेट्स बेसिकली क्या होते हैं सिलिकेट्स? जहां पे भी SiO4 4- बेसिक यूनिट होती है, फिर उसका हाँ डेफिनेटली वी कैन हैव पॉलीमर्स ऑफ दिस, उसे हम सिलिकेट्स कहते हैं. एनसीईआरटी में सिलिकेट्स दे रखा है, ऐसे 2 या 3 टाइप के सिलिकेट्स दे रखे हैं. हम थोड़े से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखने सिलिकेट्स में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं. दिस वीक सिलिकेट्स SiO4 4- unit. First type of silicate, orthosilicate, single unit, a discrete unit of SiO4 4-, no shared corner. So कुछ हमें ऐसा दिखेगा. फिर आते हैं हम पायरोसिलिकेट पर. 2 SiO4 यूनिट से ये मिलके बना होता है, इसमें एक कॉर्नर शेयर हो रहा है. 2 units of SiO4- and sharing of 1 corner takes place. So Si2O7 6-. 2 कंबाइन कर दो और एक ऑक्सीजन बीच में कॉमन आ गया तो एक ऑक्सीजन को कम कर दो. ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा Si2O7 6- का. इज दैट ओके? क्या पहले 2 क्लियर हैं सभी को? Yes, sir. The second वाला एक बार फिर से बताओ. सेकंड वाला फिर से बताता हूं मैं एक बार. देखो हमने क्या किया, ये एक SiO4 4- यूनिट था. एक सेकंड यूनिट लेते हैं SiO4 4- का. सो ये दूसरा यूनिट हो गया माइनस माइनस माइनस. अब इसका जो ये वाला ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को हम रिमूव कर देते हैं. तो फोर्थ ऑक्सीजन को हमने एक रिमूव कर दिया इस ऑक्सीजन को, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन कॉमन ले लिया. अब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में चला गया तो उसे नेगेटिव चार्ज की रिक्वायरमेंट ही नहीं, तो ये नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा. क्लियर? तो एक ऑक्सीजन कम हो गया, उस ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज, और बीच में जो शेयर्ड ऑक्सीजन है उसका नेगेटिव चार्ज कम हो गया. कितने नेगेटिव चार्ज बचे हैं? 6 सारे कॉर्नर वाले ऑक्सीजन पर. कितने शेयर्ड ऑक्सीजन है? 1. अभी क्लियर है? Yes sir. अब इसको है ना ऐसे भी ड्रॉ किया जाता है, और ये डायग्राम भी एनसीईआरटी में दे रखा है. समझना इसका क्या मतलब हुआ. ये जो डॉट है ये सिलिकॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो बड़ा सा सर्कल है ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्लियर? ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है. तुम यदि इसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में देखोगे तो सिलिकॉन बीच में है. क्लियर? यहाँ पे बीच में सिलिकॉन, ऊपर एक ऑक्सीजन, बाकी फिर 3 ऑक्सीजन उसके नीचे कुछ होंगे, और यदि तुम तीनों ऑक्सीजन जो नीचे वाले हैं उनको कंबाइन करोगे तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा. क्लियर? ऊपर वाले ऑक्सीजन को भी कंबाइन करोगे तो टेट्राहेड्रल दिख जाएगा. सिलिकॉन बीच में आ गया. क्या ये स्ट्रक्चर समझ में आता है हमें? इज दैट ओके? SiO4 4- का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल विद रिस्पेक्ट टू सिलिकॉन. ये वाला ऑक्सीजन कॉमन आ गया सेकंड केस में, तो ये वाला जो बीच वाला ऑक्सीजन दिख रहा है कॉमन आ गया. ये 3 ट्राइंगल वाले ऑक्सीजन नीचे हैं, और 3 ट्राइंगल में से एक कॉमन आ गया. और ये ऊपर वाला ऑक्सीजन और सिलिकॉन, हम इसका टॉप में इसको बोर्ड पे ड्रॉ करके बताता हूँ तो थोड़ा सा समझ में आएगा. मैं बोर्ड पे ड्रॉ करता हूँ, बट उसके पहले तुम इतना कॉपी कर लो. फर्स्ट केस, सेकंड केस, साइक्लिक सिलिकेट फॉर्मूला, उसका स्ट्रक्चर, एंड देन चेन सिलिकेट. मतलब ये पेज जल्दी से कॉपी करो, फिर मैं इसको बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ सब कुछ. इसको मैं बोर्ड पे ड्रॉ करके बता देता हूँ. यू कैन ड्रॉ दिस ऑल दिस थिंग.
सर वो ऑर्थोसिलिकेट के राइट साइड में क्या लिखा है? किसके राइट साइड में? ऑर्थोसिलिकेट के। डिस्क्रीट सिंगल डिस्क्रीट यूनिट्स ऑफ SiO4 4 माइनस नो शेयर ऑफ कॉर्नर। इसमें तुम देखोगे ये कॉर्नर शेयर हो रहा है, यहाँ पर ये 3 कॉर्नर शेयर हो रहे हैं, यहाँ पर ये कॉर्नर शेयर हो रहे हैं 2 यूनिट्स के बीच में, राइट? सर पायरोसिलिकेट्स का एग्जांपल क्या लिखा है? स्कैंडियम Sc2Si2O7, स्कैंडियम 2 Si2O7। हो गया क्या कॉपिंग? तो वन सर सेकंड। साइक्लिक सिलिकेट्स में n इक्वल्स टू 5 6 है ना? किसमें? साइक्लिक सिलिकेट्स। साइक्लिक सिलिकेट्स में n इक्वल टू 3 6 9 ये कॉमन होते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे 3 यूनिट्स का एग्जांपल मैंने ड्रॉ किया है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। डन सर। ओके, चलो इसे मैं थोड़ा सा बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो SiO4 4 माइनस, यहाँ पर यदि तुम स्ट्रक्चर देखोगे, ये सिलिकॉन, ऊपर एक ऑक्सीजन, नीचे ये 3 ऑक्सीजन हो गए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में। इसको हम एक ट्रायंगुलर फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम टॉप व्यू देख रहे हैं, क्लियर? ऑक्सीजन और सिलिकॉन एक ही लाइन में आ रहे हैं, ये 3 अलग दिखेंगे हमें, तो इसको इस वे में ड्रॉ किया जा सकता है। ये तो एक पूरा ट्रायंगल हो गया। यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसमें बीच में सिलिकॉन और ऊपर ऑक्सीजन, समझना। ये 3 ऑक्सीजन ये आ गए, सिलिकॉन और ऑक्सीजन सेम वर्टिकल लाइन पे है, तो हम टॉप व्यू देख रहे हैं, सेम वर्टिकल लाइन पे आ गए सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। तो डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है सिलिकॉन और सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन। इज दैट ओके?
चार्ज माइनस माइनस माइनस, इन सब पे चार्ज माइनस आ गया। ठीक है, यहां पर इफ यू वांट वी कैन डिनोट इन दिस मैनर आल्सो, चाहो तो इन्हें कनेक्ट करके भी हम इसको शो कर सकते हैं। क्लियर, कुछ ऐसे लाइंस हमसे इवन कभी कभी ये जो ये वाली लाइंस है ना, यू डू नॉट हैव एनी बॉन्डिंग बिटवीन दिस ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, वो जस्ट एक ट्रायंगल शो किया है, इसको कभी कभी डैश से भी डिनोट कर दिया जाता है, ये बॉन्डिंग नहीं है, जस्ट स्ट्रक्चर को शो कर। क्या इतना क्लियर है? पहला केस। अब आते हैं हम Si2O7 6- पर, एक ऑक्सीजन कॉमन है यहां पर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन आ गए, एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, कितने हो गए हमारे पास ऑक्सीजन? 5, टोटल चाहिए 7। यहाँ पर बीच में सिलिकॉन और उसके ऊपर ऑक्सीजन, बीच में सिलिकॉन उसके ऊपर ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज इन 3 ऑक्सीजन पे, यहाँ पर इन 3 ऑक्सीजन पे, इस पे नेगेटिव चार्ज नहीं होगा तो शेयर्ड। क्लियर, यहाँ पे यू कैन कनेक्ट देम बाय सॉलिड लाइन, सिलिकॉन सॉलिड लाइन से कनेक्ट हो सकता है। क्लियर, ये सेकंड का स्ट्रक्चर आ गया, और सिमिलर मैनर में आगे भी स्ट्रक्चर ड्रॉ। क्या अभी क्लियर है ये? बोलो यस नो, समझ में आया इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखो सिलिकेट्स देखा, सिलिकेट्स के बाद हैं सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स, दिस आर द ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड्स, पॉलीमर कंटेनिंग सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन लिंकेज। जहां पे सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन लिंकेज होता है उसे हम सिलिकॉन्स बोलते हैं। क्लियर, और preparation, they are prepared by hydrolysis of alkyl or aryl substituted chlorosilane, chlorosilane means SiCl4, and their subsequent polymerization। समझना, रिएक्शन थोड़ा सा समझने का इसमें। R2SiCl4 हमने ये लिया है अल्काइल और एराइल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसाइलेन, SiCl4 में से कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिए गए क्लोरीन अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप से। क्लियर, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन परफॉर्म किया, H2O को ऐड किया और 2 HCl, यहां से ये 2 HCl बाहर आ गए, OH OH कनेक्ट हो गए। क्या स्टेप 1 क्लियर है? हाइड्रोलिसिस ये पहले भी देखा है हमने, राइट? लास्ट लेक्चर में देखा था ये हाइड्रोलिसिस, या आज ही देखा था शायद। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? पॉलीमराइजेशन। R2SiOH होल टू इसका ये फर्स्ट यूनिट, R2SiOH होल टू इसका ये सेकंड यूनिट, दोनों पॉलीमराइज होंगे, H2 बाहर निकलेगा और बीच में 2 OH OH में से H2 बाहर आ गया, बीच में बच गया एक ऑक्सीजन। क्या ये क्लियर है? Am I audible or not? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब इसके बाद फर्दर तुम इसमें वापस से एक और यूनिट ऐड करोगे। सो अभी तो हमने 2 यूनिट को कंबाइन किया, फिर थर्ड होगा, फिर फोर्थ होगा, ऐसा पॉलीमराइजेशन होगा। तो जब तक ये OH यूनिट रहते जाएंगे लास्ट में, वो पॉलीमराइजेशन होता चला जाएगा। यदि हमें पॉलीमराइजेशन को रोकना है तो अब हम क्या करेंगे? हम पता है एक ये सब्सटेंस यूज कर लेंगे जिसमें R3SiCl हो, क्योंकि R3 आ गया तो अब इस OH की जगह एक और R आ जाएगा, तो पॉलीमराइजेशन रुक जाएगा। इज दैट ओके? सो पॉलीमराइजेशन को रोकना है तो बजाय 2 क्लोरीन के फिर एक ही क्लोरीन ग्रुप उसमें ऐड कर दो, ऐसा सब्सटेंस ऐड करो जिसमें 3 अल्काइल और एराइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड हो, तो वहां पे पॉलीमराइजेशन कंट्रोल्ड हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है RSiCl3 gives cross-linked silicons
RSiOH whole thrice is formed from the hydrolysis. यहाँ पे ये है, सबसे पहले तो हमने यदि 3 Cl यूज किए तो क्या होगा, 3 Cl यूज किए तो ये वाले R की जगह भी Cl आ जाएगा और यहाँ पे OH ऐड होगा। यदि OH ऐड होगा तो ये क्रॉस लिंक भी देगा, यहाँ पे भी पोलिमराइजेशन होता चला जाएगा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? Yes, sir. मैं इसको भी बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ। क्लियर? तुम जस्ट एक बार लिखो, मैं पूरा ये बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ फिर। R3SiCl is used to control the chain length. It is used in oils, rubbers, paints, water, insulators. Silicones are hydrophobic compound and very less reactive. पूरा कॉपी कर लो पहले पेज, फिर मैं इसे भी बोर्ड पे अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। और जितना भी इस पेज पे लिखा है ना, ऑलमोस्ट सब कुछ एनसीईआरटी में दे रखा है। एक्सक्यूज मी सर, यस सर वो क्या लिखा है, डाई साइलेंट डायोल, डाई अल्काइल साइलेंट, डाई अल्काइल टू अल्काइल ग्रुप, साइलेंट मतलब सिलिकॉन के जो कंपाउंड्स होते हैं SiH4 को साइलेंट कहा जाता है, उसका डेरिवेटिव है डाईओल 2OH ग्रुप। क्लियर? यस सर। हो गया कॉपी? नो सर वो वाटर के बाद में क्या लिखा है, वाटर? वाटर रिपेलेंट।
एज अ वाटर रिपेलेंट, हाइड्रोफोबिक होते हैं। Sir, what's the last point? सिलिकॉन्स आर हाइड्रोफोबिक, वही उसी पॉइंट को कंटिन्यू किया है। हाइड्रोफोबिक कंपाउंड एंड वेरी लेस रिएक्टिव। Hydrophobic means water repellent. Done. Complete? Yes, sir. इसमें एक लास्ट हेडिंग जो भी है हमारी वो है जियोलाइट्स। फिर उसके बाद मैं उसको बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ सिलिकॉन्स को। इफ एल्यूमिनियम रिप्लेसेस प्यूर सिलिकॉन इन SiO2 3-dimensional स्ट्रक्चर, देन इट इज नोन, जो भी 3-dimensional स्ट्रक्चर बनेगा SiO2 में जब एल्यूमिनियम आएगा सिलिकॉन को रिप्लेस करेगा, दिस इज कॉल्ड एल्यूमिनोसिलिकेट्स which acquire negative charge cations such as Na+, K+, Ca2+, which is balanced by negative charge. Example, feldspar, zeolite. Zeolite is used as a catalyst in petrochemicals. Hydrated zeolite is used as ion exchange in softening of hard water. इतना हमें लिखना है zeolite के लिए। कॉपी कर लो zeolite। और ये जो भी यहाँ पे लिखा है एज इट इज एनसीईआरटी में दिया है, वहीं से जस्ट यहाँ पे लिखा गया है। So what is the first example? Where? Of zeolites. Change cations such as Na plus balance the negative change. Cations such as Example. Na+, K+ or Ca2+ balance the negative charge. Example, feldspar, FeLDSPAR, feldspar and zeolite. तो बेसिकली यहाँ पे तो यहाँ तक तो हमें ये बताया गया है कि जियोलाइट क्या चीज है, फिर जियोलाइट को स्पेसिफिक नीचे डिफाइन किया गया है। एक और यूज लिखना है उसके बाद, ये नीचे लिखा रहा हूं मैं, पहले उतना कॉपी करो।
हो गया क्या कॉपी? यस सर। You can write one more use. ZSM5, it is a type of zeolite. ये एक zeolite का type है. Is used to convert alcohol. लिख रहे हो मैं बोलूं? ZSM5, a type of zeolite, is used to convert alcohol directly into gasoline. Is used to convert alcohol directly into gasoline. ZSM5, a type of zeolite used to convert alcohol directly into gasoline. सर वो पेट्रोकेमिकल के बाद क्या लिखा है? पेट्रोकेमिकल। Petrochemical hydrated zeolite. चलो complete. देखना alkyl और aryl substituted silane SiCl2, यहाँ पे हमने R ग्रुप ले लिया. सबसे पहले इसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं. ठीक है, हमने इसको वाटर से रिएक्ट करवाया, 2H2 माइनस 2HCl कर दिए, HCl बाहर आ गया, OH ग्रुप इस तरह अटैच हो गया, SiOH OH R R. अब इसको हम पॉलीमराइज कर रहे हैं. क्लियर? इसमें फर्दर तुम जब 2 यूनिट ऐसे ज्वाइन करोगे, मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूं, Si R R OH देखना. तो 2 यूनिट हमने मर्ज किए, ये H2 को बाहर कर दिया, ये बीच में आ गया. यहाँ पर सिमिलर मैनर में ये H2 बाहर हो जाएगा, ये बीच में आ जाएगा. तो पॉलीमराइजेशन में फाइनली हमें मिल जाएगा Si ऊपर R नीचे R O Si O Si एंड सो ऑन R. ऐसा कुछ हमें मिलता चला जाएगा. क्या इतना समझ में आता है हमें? तो ये H2O फर्दर यहाँ पर रिएक्ट कर लेगा, ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन, कंटिन्यूअस एक पॉलीमर बन जाएगा. अब इस पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस को हमें रोकना है, पॉलीमराइजेशन को स्टॉप करना है, तो क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे SiOH R R R. अब यहाँ भी यदि R आ गया, क्लियर, यहाँ पे भी यदि R आ गया, तो अब जैसे ही इसका ऑक्सीजन हाइड्रोजन
ये H2 बाहर निकलेंगे, SI और R यहाँ पे आके रिएक्शन रुक जाएगा। तो बजाय 2 क्लोरीन के अब हमने 3 क्लोरीन ले लिए, सॉरी 2 क्लोरीन की जगह 1 ही क्लोरीन लिया और यहाँ पर हमने लिया 3 सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप। सो दिस रिएक्शन विल स्टॉप हियर। कितना हमें समझ में आता है? यदि पोलीमराइजेशन को कंट्रोल करना है तो R3SiCl यूज करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है, हमने पहले यूज किया R2SiCl2, ये यूज करेंगे तो रिएक्शन रुक जाएगा। व्हाट इफ वी यूज RSiCl3, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन, यदि हम RSiCl3 यूज करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे भी OH आ जाएगा। तो ये सिमिलर वे में यहाँ पे भी कुछ क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन होने लगेगा। सो क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन होना चालू हो जाएगा। पहले चेन स्ट्रक्चर में था, ये यूज कर रहे हैं तो चेन, क्लियर? ये यूज कर रहे हैं यदि हम तो रिएक्शन को रोक रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं तो क्रॉस लिंक। क्या ऐसा ही कुछ लिखा है हमने लेक्चर नोट्स में? Yes, sir. समझ में आया अभी सभी को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, चलो 10:49 हो गया है, बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं बचा है। कुछ होमवर्क डिस्कस कर लें, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और यू कैन अटेंड कंप्लीट बुकलेट। यहाँ पर मतलब तुम एक्सरसाइज 1 2 3 तीनों कर सकते हो, ऑर्डर यही रखना है। पहले हमें एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करना है, फिर एक्सरसाइज 2 जो ऑलरेडी दे चुका था वो तो अलग बात है, फिर एक्सरसाइज 3। इसी ऑर्डर में मैं डिस्कस करूंगा और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे इसके बाद। क्लियर? Yes. यस सर। तो कुछ डाउट डिस्कस कर लें हम फिर अभी। चलो, कितने क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में? 1 to 31. 31. so you can type doubts from 1 to 15. First you can type doubts from 1 to 15 in chat box fast. Question number 6 from Priya Patil. Aluminum vessel should not be washed with material containing washing soda because देखो, वॉशिंग सोडा मतलब Na2CO3, Na का कंपाउंड होगा, NH होगा और एल्यूमिनियम उससे बनाता है AlOH4-। ये कुछ कंपाउंड बनता है, सोल्यूबल कंपाउंड बनता है, रिएक्ट करता है। वॉशिंग सोडा रिएक्ट विद एल्यूमिनियम टू फॉर्म अ सोल्यूबल एल्यूमिनेट। वॉशिंग सोडा रिएक्ट विद एल्यूमिनियम टू फॉर्म इन सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये सोल्यूबल कंपाउंड बनेगा AlOH4-। क्लियर? और ये वैसे मेटलर्जी में भी देखेंगे। इज दैट ओके प्रिया? Question number 4 from Rudraksh and Lokesha. The ion that act as an oxidizing agent in the solution, जो खुद reduce हो वो oxidizing agent जैसा react करेंगे। So helium plus तो करेगा नहीं, first option is not correct. Helium plus 3. Helium inert pair effect, it has more stable oxidation state as +1. So Tl का +1 ज्यादा स्टेबल है, +3 से +1 आ जाएगा, खुद रेड्यूस होगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। Is that okay, रुद्राक्ष? Yes, sir. इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 9. Borax is used as a buffer since its aqueous solution contain equal amount of weak acid and its salt. First option is correct. बोरेक्स बफर जैसा यूज होता है
क्योंकि इसमें पता है 2 मोल ये कुछ बनता है, बोरेक्स जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं 4 मोल्स ऑफ H3BO3 एंड 2 मोल्स ऑफ NaOH बनता है। क्लियर? तो 2 मोल्स NaOH जब इसके 2 मोल से रिएक्ट करेगा तो 2 मोल सॉल्ट बन जाएंगे। क्लियर? सॉल्ट कौन सा बनेगा? यहाँ पे सॉल्ट बनेगा NaBOH होल 4, ये सॉल्ट बनेगा। तो 2 मोल हमारे पास सॉल्ट के बन गए और हमारे पास इसके 2 मोल बच गए। तो इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड एंड सॉल्ट। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसका 9 का, क्या दे रखा है? फर्स्ट दिया इसके बाद है 12th, H3BO3 ionizes in water. None of this. H3BO3 is not a Arrhenius acid. It is a monobasic Lewis acid. ये OH minus accept करता है, H plus donate नहीं करता है, right? So none of this is correct answer. 12th का D दे रखा है। Yes, sir. चलो 15 तक क्लियर है, और कोई किसी का डाउट नहीं है? होमवर्क आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस ऑर्डर। सबसे पहले मैं एक्सरसाइज 1 लूंगा कंप्लीट, जो भी सेक्शन सी सेक्शन डी पेंडिंग है, फिर एक्सरसाइज 2 कंप्लीट लूंगा और उसके बाद लूंगा एक्सरसाइज 3। सो टिल नेक्स्ट वीक आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट दिस वन एंड 2, बट लेक्चर नोट्स पहले अच्छे से पढ़ना, और कहीं भी तुम्हें लगता है किसी क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तुम अपने नोट लेक्चर नोट्स में लिख सकते हो। ठीक है, सेशन एंड कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट वीक मैं डाउट्स लूंगा और उसके बाद इलेक्ट्रो भी स्टार्ट करूंगा। इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं डाउट्स में, तुम अपने एंड से थ्योरी पार्ट अच्छे से पढ़ लेना।